Good morning, student. Myself KK Bhatt. Once again, I am here with the second part of passive voice. Dear students, in the previous video, I taught you what is the definition of voice as well as what is the definition of active voice and passive voice. And also I told you the differentiate between them. Today I am going to teach you active and passive voice rules. Active and passive voice rule through the chart. Yesterday I told you that some tenses that are not used in voice, in passive voice, as for example, future continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, as well as future perfect continuous tense. See here, through the chart I will describe the rule of voice. See here, simple present tense. You know that in active voice, V plus V1 plus yes or yes. That is the structure. That is the structure of simple present tense. Word first form, we use word first form, yes and yes. Used with singular person subject, singular number per subject, singular number subject, singular number subject. Is clear? Now what's in passive voice? Say here, is and are. That is used as a helping word. Then after we use third form of the then are, then what's subject change into object, object change into subject. It is clear? How will we identify the present tense, present indefinite tense? In active voice, if in present tense the verb is in first part and subject is in plural number, but if yes or yes add with the subject and subject is in singular number, where we identify the tense as simple present tense. We change it into passive voice that use is and are with third form of verb and by. Then after we change subject into object. Then after we change subject into object. It is clear to everyone? Now see here, simple past tense. What's simple past tense? Second form of we use second form of इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Second form of. Then what is in passive voice? Was, were plus third form of verb plus by. It means by means after by we change subject into object. हम क्या करेंगे? Subject को object में change कर देंगे. तो how will we recognize the simple past tense? Simple past tense को हम कैसे पहचानते हैं? With the second form. If in the tense the verb is in second form, undoubtedly the particular sentence is the part of simple past tense. Okay? And what is passive? Passive rule क्या होगा इसका? Was verb में हम change करेंगे, use करेंगे, and third form of verb then we use by. Now see, in simple future tense, it means future indefinite tense. We use here will or shall. Will or shall. Then after first form of, it means अगर सेंटेंस में will या shall लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है, ठीक है? तो अनडाउटली will and shall and first form of verb describe the simple future tense. It is a part of simple future tense. Now see here, what is the passive rule of this particular sentence? Now see here, will be or shall
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस। कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? will be or shall be, then after we use third form of verb. It is clear to everyone? Will be or shall be, then after this third form of verb, then after by. That is clear? और कैसे हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे आनते हैं, इस वर्ब फॉर्म से कैसे आनते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? Is a mark that is indicate the simple present tense, was what that indicate the simple past tense, will be, shall be that is used in future indefinite tense or simple future tense. Now see here in present continuous tense, present continuous tense and past continuous tense. You know that in future continuous tense there is no passive voice because of they. Okay, see here present continuous tense we use here is and are plus one first form plus ing. क्या हम यूज करते हैं? is and are plus one first form plus ing. क्लियर? ये जो होता है ये हमें बताता है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है. क्लियर? अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे. इज एंड आर प्लस बीइंग लगाएंगे. क्या लगाएंगे? क्लियर? हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस. क्लियर? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस. से पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? वी यूज वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस. इट मींस अगर इज ए मार्क आईएनजी फॉर्म के साथ आया हुआ है तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. अगर वाज वर्ब आईएनजी के साथ आया हुआ है तो क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस. इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज किया, हमने यहाँ बीइंग का प्रयोग किया. ऐसे मींस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी आल्सो यूज की वाज वर्ब प्लस being plus third form of verb plus. It is clear to everyone? Now see present perfect tense. Now see here present perfect tense. Present perfect tense, past perfect tense as well as future perfect tense. See here, present perfect, present perfect tense, past perfect tense as well as future perfect tense. It is clear? Present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. You know that in present perfect tense we use has or had plus third form of verb. हम क्या यूज करते हैं? has, had plus third form of verb. इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं. We change has, had plus been plus third form of verb plus. क्या यूज करते हैं? हम हैज है, बी लगाते हैं, then after third form of verb at last we use by. It means after by we change the subject into object. See here, past perfect tense we use had plus third form of verb. What do we use? Had plus third form of verb. Here what do we use? Had plus been plus third form of verb plus. It is clear to everyone? Now see here, what is the rule of future perfect tense? Will, shall plus had plus third form of. It means will या shall. Will के साथ भी have लगाते हैं और shall के साथ भी हम लगाते हैं. It means will have, shall have plus third form of.
इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? से है विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर। I think it is clear to all. Will, shall, have plus third form of verb. This format show the identification of future perfect tense. ये फॉर्मेट क्या बताता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताता है। हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को बताता है। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है तो हैज हैड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? हैज हैड के साथ हम बीन यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बाय लगाते हैं। या हैड लगाते हैं, बीन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बाय लगाते हैं। या विल, हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाय लगाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये तो था टेंस, जो 8 टेंस होते हैं जिसको आपको पढ़ना है आगे, उसका ये रूल था कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे या पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस को जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये रूल लगेगा और इसको जब चेंज करेंगे तो ये रूल लगेगा। इट इज क्लियर नाउ। नाउ सी हियर मॉडल्स। हम बताएंगे आपको मॉडल्स को हम कैसे चेंज करते हैं। सी हियर मॉडल्स। मॉडल्स में बेसिकली आप जानते हैं मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल। तो हम फर्स्ट जैसे मान लो आपके कैन, कुड, मे, माइट, कुड, शुड, आर्ट, must, will, shall, it is। इनके साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये सारे मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे। सारे मॉडल वर्ब यूज करने के बाद आप एट लास्ट क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इट मींस आप क्या कर सकते हैं? कैन यूज कर सकते हैं, कुड, मे, माइट, विल, शैल, would, should, ought to, must, it is। इस सारे मॉडल लगाने के बाद हम क्या करेंगे? डी यूज करते हैं और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या करते हैं? हम सारे मॉडल वर्ब यूज करने के बाद हम बी लगाते हैं। बी के बाद हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जो भी भाई बहन जो भी बना होता हम लगाते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वर्ब? एंड नो डाउट्स, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं उनके साथ पैसिव वॉइस में हम क्या करते हो? बी लगाते हो। बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो और फिर उसको जो है आप किसमें चेंज कर देते हो? थर्ड बाई के द्वारा आप इसको पैसिव वॉइस बना देते हो। Now see here, what is in passive? What is in imperative sentence? Imperative sentence में क्या होता है? आप देखो यहाँ imperative sentence। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करता है? आप जानते हो कि इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब आप पैसिव बनाते हो तो लेट को लेट का यूज करते हो
लेट, फिर उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट आप बनाते हो, ठीक है, ओके। फिर आप यूज आप जो करते हो बी यूज करते हो, फिर थर्ड फार्मा वन यूज करते हो। थर्ड फार्मा इट मीन्स अगर कहा जाए ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। सी योर एग्जांपल, इफ एनीवन से ओपन द, तो क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, किसका, इम्परेटिव सेंटेंस का। कभी कभी हम शुड से भी बनाते हैं, आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और द डोर शुड बी। दैट इज द simple rule of passive voice. Through this chart, you can understand and recognize the particular tense as well as the structure of active voice and passive voice. Through the chart, you can change active voice into passive voice and passive voice into active voice. I think it is beneficial to all. So now see here, I will describe it through the example. अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। से बेटा कल आपको हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था, उसी के आगे हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस आता है, सी रोड अ लेटर, सी रोड अ लेटर। सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें टेंस क्या है, देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हो, इट इज क्लियर। ये जो किसका पार्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है, बिकॉज ऑफ सेकेंड फॉर्म। सी हियर लेटर इज ऑब्जेक्ट, हियर लेटर इज ऑब्जेक्ट, एंड सी हियर एज ए सब्जेक्ट। अब इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, हमने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इट मींस अ लेटर हियर यूज। सी हियर इन द स्टार्ट was one plus third form of the write, wrote, written by object, see object क्या होगा, it is clear. What's your understanding in the simple past tense? She wrote a letter, here she is object, a letter is object, so how is it passive voice, a letter was written by. In case of if the sentence is in negative, मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव में अगर है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, राम डिड नॉट प्लग द फ्लावर, राम डिड नॉट प्लग द फ्लावर। सी हियर डिड नॉट गेट इंडिकेट्स अबाउट द नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ देखो क्या है, द फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर इज ऑब्जेक्ट। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो वाज वर्ब के बाद नॉट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर वाज नॉट प्लग्ड, द फ्लावर वाज नॉट प्लग्ड बाय राम, द फ्लावर वाज नॉट प्लग्ड बाय राम। इट इज क्लियर टू ऑल, द फ्लावर वाज नॉट प्लग्ड बाय राम। से हाउ विल वी चेंज नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सी हियर अ सेंटेंस, हाउ डिड रिया डू दिस वर्क, हाउ डिड रिया डू दिस वर्क, हाउ डिड रिया डू दिस वर्क। अब आप देखो यहाँ पे हाउ क्या ये इंडिकेट करता है किसको, इंट्रोगेशन को,
क्लियर? यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है, वर्क क्या है, डू है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो हाउ में हम क्वेश्चन से नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, दिस वर्क सिंगुलर नंबर है तो आवाज लगाएंगे, हाउ वाज दिस वर्क, हाउ वाज दिस वर्क। यहाँ डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन बाय रेड। इट इज क्लियर? तो हाउ वाज did change into was what as the rule of passive voice. How was this work done by Priya? I think it is clear to all. How to change simple past tense into passive voice and passive voice into active voice. Through the chart you can understand the structure and also recognize the tense. And here just show the example. I will tell you how to change negative sentence into passive voice as well as how will we change interrogative sentence as a passive voice. It's clear? Now see here one more sentence. Sometimes a sentence also like that. Who wrote the letter? Who wrote the letter? Here in this condition जो who होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, बाय में चेंज करते हैं। क्लियर? जैसा कि ये सब्जेक्ट हिडन सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हिडन सब्जेक्ट। तो आप जानते हो सब्जेक्ट को हम बाय के द्वारा चेंज करते हैं, बाय को हम लिखते हैं। तो अब जनरली अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट होता है तो आप क्या करते हैं, द लेटर वाज रिटन बाय हिम। अंडरस्टैंड? अगर मान लो यहाँ हु के साथ ही होता तो आप क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, द लेटर आप लिखते हैं द लेटर वाज रिटन बाय हिम। आप लिखते द लेटर वाज रिटन बाय हिम। बट यहाँ के स्थान में क्या है, हुआ है। हु क्या है, हिडन सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट। इट मीन्स हम हु को किसमें चेंज करते हैं, हु हुज हुम। इट मीन्स हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। तो यहाँ हु को हम यहीं पे क्या करते हैं, बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? ये हम क्या करते हैं, बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। इट इज बाय हुम। इसके बाद आप एक्टिव वर्ब का यूज करते हो, बाय हुम वाज द लेटर रिटन, बाय हुम वाज द लेटर। क्लियर? बाय हुम वाज द लेटर, या इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो, द लेटर वाज रिटन बाय हिम। द लेटर वाज रिटन, द लेटर अब आप कर सकते हो, द लेटर वाज रिटन बाय हुम, द लेटर वाज रिटन बाय हुम। ऐसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ओरिएंटेड अथवा प्राचीन है, मॉडर्नाइज्ड नॉट अपडेटेड नहीं है। तो बाय हुम वाज द लेटर रिटन, दैट इज परफेक्ट। आई थिंक you get more benefit from my video. Thanks to watch my video. I hope you will share and subscribe, also like.